بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا ایک دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ان کو جلوس میں حضرت خواجہ اویس کرنی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات کے منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں لوگوں سے ان کو چھپا کر رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ویسے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت و مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام آنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شدائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور آنکھوں سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا خود پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنے والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تو تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جو میرا جنون شدت اختیار کرتا گیا میں دانت توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس عاشق کی اس ادا کو بہت پسند فرمایا اور آپ کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم چیز کے کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو عطا فرمائیں؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ کی نماز کے خطبے میں ارشاد کیا کہ نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟
सब ने जवाब दिया कि हम अवैसे करनी से बिल्कुल नाआशना हैं। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हजरत उमर और हजरत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें इससे मिलवाएं। अर्ज की गई कि वो वादी कर्न में ऊंट चराता है और रात को रूखी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता, वो खाना जो हम लोग खाते हैं इसको पसंद नहीं करता, लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। हजरत उमर और हजरत अली वादी कर्न में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजरत अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस करनी नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर ने आपको अस्सलाम अलैकुम कहा। जवाब में वालेकुम अस्सलाम हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया। हजरत अली ने आपसे नाम पूछा तो जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना खास नाम बताएं। ख्वाजा साहब बोले, मेरा नाम अवैस है। हजरत उमर ने उनके हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतल्लिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था। वो निशान अवैस की शराफत की अलामत होगा। जब वो निशान अलामत हजरत अवैस के हाथ पर देखा तो आपने उनके हाथ को बोसा दिया और कहा, ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये खरका भी अता फरमाया है और वसीयत फरमाई कि आप उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश के लिए दुआ करें। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि ए उमर और अली, आप लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीके खास हैं और मुझसे ओला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हजरत उमर और हजरत अली यक जुबां होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप मौजूब वसीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाएं। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा, ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा फरमाया करते। हजरत उमर ने फरमाया कि अवैस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतल्लिक दो निशान बताए हैं और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा मेरी पहचान और पहुंच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हजरत उमर और हजरत अली से कहा, लाइए वो खरका मुझे अता कीजिए, मैं हस्बे हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको खरका दिया गया तो हजरत उमर और हजरत अली से कुछ फासले पर जाकर हजरत अवैस करनी जमीन पर सजदा रेज हो गए और अर्ज करने लगे, ए बारी ताला, मैं उस वक्त तक ये खरका नहीं पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्श ना दे, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने यह खरका मुझे अता किया है और फरूक और मुर्तजा ने मुझ तक पहुँचाने के फराइज सर अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है कि तू मेरी दुआ को सुन ले और कबूल कर ले। थोड़ी देर बाद हजरत उमर और हजरत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा साहब ने देखकर कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आए? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद ना होती तो मैं उस वक्त तक ये खरका नहीं पहनता जब तक अपने आका की सारी उम्मत को ना बख्शवा लेता। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सिफारिश पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बख्शिश दी जाती। मशहूर सहाबी हजरत अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि जब मैं हजरत अवैस करनी की ज़ियारत के लिए गया तो मैंने इन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो वो अपने वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आया और फिर यके बाद दीगरे तमाम नमाजों में ऐसा देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हजरत ने ना कुछ खाया ना पिया बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना भी खाया, फिर इस्तगफार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं नींद और भूख के गलबे में मुब्तला हो गया। हजरत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का बहुत शौक था। इसीलिए उन्होंने एक मर्तबा मदीने आने का इरादा किया। इधर उन्होंने इरादा किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वो यहाँ आए तो इसकी खूब खातिर मदारत की जाए और हर तरह से ख्याल रखा जाए कि वो बड़ा ही पारसा इंसान है और मेरे आने से
اس کو आने तक उसको रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो ना रुकना चाहे तो उसे मजबूर ना किया जाए, मगर उसकी शक्ल सूरत याद रखी जाए। ये हिदायत देकर रसालत मआब गज़वा में शिरकत के लिए रवाना हो गए। जब ख्वाजा अवैस करनी मदीना तशरीफ लाए और उनको पता चला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीने में नहीं है, तो उन्होंने वापसी का फैसला कर लिया। बड़ी कोशिश की उन्हें वहां रोकने की, मगर वो ना रुके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो उन्होंने हजरत आयशा से सवाल किया कि क्या कोई मेहमान आया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो कि यमन से आया था, इसकी शक्ल सूरत चरवाहों के जैसी थी। आपको ना पाकर वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुका और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा बताओ वो कौन था। अर्ज की कि हुजूर मैं नहीं जानती। फरमाया कि वो अवैस था जो मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था और दीदार की ख्वाहिश लिए वापस चला गया। वो ठहर भी नहीं सकता था क्योंकि इसकी एक वालदा है जो कि बूढ़ी है और आंखों से नबीना है। इसकी देखभाल के लिए कोई और नहीं है। इसकी हर हाल में इसलिए उसको हर हाल में वापस ही जाना था। वो शख्स है जो कि खुदा और उसके रसूल का सच्चा चाहने वाला है, जिसको सिर्फ जिक्र इलाही से गर्ज है और वो किसी चीज़ से ना मरऊब है ना मुतासिर है। अवैस मेरा आशिक है और अल्लाह से मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा ने यह बात सुनी तो इसकी को ख्वाजा अवैस करनी के मुकाम पर रश्क आने लगा और फरमाने लगी, ए खुदा के हबीब, वो शख्स वाकई किस कदर अजीम होगा जिसकी ज़हदो तकवा और इबादत और रियाजत की तारीफ खुदा और उसके महबूब करे। मशहूर ताबी हज़रत हरम बिन हयान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि एक बार ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ इस तरह बयान करते हैं। ख्वाजा अवैस करनी कूफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ सुनी तो मुलाकात का शौक गालिब हुआ और मैं उनकी ज़ियारत के लिए कूफा पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो दरिया फ़रात पर मिलेंगे। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तो मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे, मेरे भाई तुम्हारा क्या हाल है। मैंने अर्ज किया कि ए अवैस करनी, ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ। इससे पहले ना मैंने तुम्हें देखा है ना तुमने मुझे। हजरत अवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे इसने बताया है जिसके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया, क्योंकि मोमिन की रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनाए ताकि मैं इसे याद करूं। हज़रत अवैस ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ़े सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को देखने की सआदत नसीब हुई है और तुम लोगों की तरह उनकी ज़ुबानों से मैंने भी हजूर के अहादीस सुनी है। लेकिन मैं अपने ऊपर ये दरवाज़ा खोलकर मुहद्दिस, मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। यह कहकर वो मेरा हाथ पकड़ कर रोने लगे। मैंने दरख्वास्त की, फिर कुरान हकीम ही कुछ आयात सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़ुबान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कर दीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चीख मार कर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। ये कहकर उन्होंने हदायत की तिलावत की, फिर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुम भी मर जाओगे। क्या खबर जन्नत में जाएं या दोज़ख में। इब्ने हयान आदम फौत हो गए, हवा फौत हो गई। इब्ने हयान इब्राहिम खलीलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा कर गए। मूसा और दाऊद भी पर्दा कर गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए। अबू बकर सिद्दीक, मेरे भाई हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। ये कहकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की और इस वक्त तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा थे। इसलिए मैंने कहा कि खुदा आप पर
रहम करे, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा अभी फोत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम इसको समझो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हैं। ये बात करने के बाद हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। ये कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया कि हरम बिन हियान, मेरी वसीयत है कि ये है कि किताब अल्लाह को मजबूती से पकड़ो, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद और सलाम भेजते रहो। मैंने अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी, आइंदा किसी सआदत मौत से गाफिल ना रहना। वापस जाकर अपनी कौम को भी यही नसीहत करना और डराना, खबरदार जमात का साथ कभी ना छोड़ना वरना बेदीन हो जाओगे और क़यामत में आतिशो दोज़ख का ईंधन बन जाओगे। फिर उन्होंने दुआ की कि इलाही, ये शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझसे मोहब्बत है और इसने तेरे लिए ही मुझसे मुलाकात की, इसलिए खुदा मुझे तौफीक दी कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान जाऊं और दारुल इस्लाम में मेरी और इसकी मुलाकात हो। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर में आपसे फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।